कम फास्ट ऑल ऑफ यू, क्लास के बीच में आना सही नहीं रहेगा। Today's class is on environment and health. Whatever it may be the environment, it is responsible for our health. It is directly or indirectly, it is responsibility for our good health. A large number of diseases are related to environment only. Like एनवायरनमेंट में हमको क्या क्या मिलता है? वाटर एंड एयर, हम पीते हैं और सांस भी लेते हैं। ये सब कंटामिनेटेड अगर नहीं रहेंगे तो ठीक है, अगर कंटामिनेटेड है वी विल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट एंड वी विल गेट so many diseases. This environment is again classified into two: internal environment and external environment. This is the internal environment is consists of each and every component of the body and their harmonious function. This is our internal body harmonious function. About internal environment is nothing but our internal organs जो भी फॉर्मली सही है और वो हार्मोनियसली परफेक्टली फंक्शन कर रहा है, स्मूथ वे में अच्छा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन आवर बॉडी. दिस इज विद इन आवर बॉडी. दिस एक्सटर्नल इज आउट ऑफ द बॉडी. बॉडी के बाहर हमारे जो एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल. इट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टू विच मैन इज एक्सपोज्ड आफ्टर कंजप्शन. ठीक है, so this is outer environment and this is our body internal environment. This environment on health is direct impact on our health. ठीक है, क्योंकि ना हम जो भी करना है डेली, सुबह उठते हैं कुछ तो भी काम करते रहते, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, एयर सांस लेते हैं. ठीक है, so it is having the direct impact on our health. But what are the factors? We have to understand about the factors. Those factors are water, air, light, sound housing, animals, insects, etc. वाटर हम पीते हैं, एयर, लाइट हमको आता है, साउंड हाउसिंग जो भी साउंड्स आते हैं, एनिमल्स, ठीक है, कुत्ते बिल्ली वो सब रहते हैं, इंसेक्ट्स मस्किटोस हाउस फ्लाइज ये सारे रहते हैं. ठीक है, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स फॉर आवर good health to impact. ठीक है, so we will study today about only water. The water, it is very essential for our life. ठीक है, per individual it may have 150 to 200 liters. ठीक है, 150 to 200 liters. A standard of health depends upon this standard, whatever it may be the water which we are going to consume. This standards is depends upon the quantity, quality and purity of water. Quantity हम डेली कितने पी रहे हैं, और क्वालिटी ये कौन सा पानी है, कहाँ से आ रहे हैं हमको, और प्योरिटी हम उसको अच्छी तरह से प्यूरिफाई करके हम ले रहे कि नहीं ले रहे की. ठीक है, दिस क्वांटिटी इज आल्सो प्ले मेजर रोल इन आवर हेल्थ कंडीशंस. ठीक है, सो दीज आर द three major factors which depends upon our good health condition. ठीक है, ये number of diseases are caused due to lack of safe drinking water. safe drinking water बोल तो ये अच्छी तरह से क्वालिटी है और ये प्यूरिफाई हुआ है, ये अगर पानी पिए तो हम सेफ है. ठीक है, सो वो हमको देखना है. so these diseases are caused due to lack of safe drinking water. lack of बोल तो ये अगर हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हमको कुछ भी कमी आया है, ड्यू टू लैक ऑफ बोले तो हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलते हैं, तो देन वी विल गेट द डिसीजेस. ठीक है, व्हाट आर दोस डिसीजेस? इफ बाय वाटर वी आर गेटिंग सम डिसीजेस, दोस डिसीजेस आर कॉल्ड वाटर बोर्न डिसीजेस. अगर हमको डिसीजेस पानी पीने से हमको इफेक्ट हो रहा है, सो दोज आर कॉल्ड वाटर बोर्न diseases. How we will get those diseases? Because of the water may get contaminated with number of impurities. अगर वाटर में उतनी ज्यादा impurities रहता है, then we will get this waterborne diseases. Those impurities are dust particles, dissolved gases, minerals and microorganisms.
So these are the major impurities in our water. Then we will get the waterborne diseases. Waterborne diseases may get by drinking of contaminated water. This contaminated water contains dust particles, dissolved gases, minerals and microorganisms. ठीक है बेटा. Next, दिस डिसीजेस क्लासिफिकेशन बोलो तो हम इसमें वाटर में जो कंटामिनेशन है वो कंटामिनेशन कौन सा कंटामिनेशन से कौन सा हमको डिसीज आता है, वॉट एवर द विच एवर द कंटामिनेशन इज देयर एंड what type of diseases we are going to affect. ठीक है. So depending upon that, these diseases are classified into two major classes. First one is due to the presence of infectious agents. यहाँ पर हम कंटामिनेशन में क्या लिखे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दोज आर नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. infectious agents बोलो तो these are living things which may contain in our drinking water. So due to the presence of infectious agents, what are those infectious agents which are going to present in our drinking water? Those are bacteria. अगर बैक्टीरियल है तो हमको कौन सा डिसीजेस आते हैं? दोज आर कलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस. इस कलेरा ये सारे जो है हम वाटर कंटामिनेशन से, आपको पता है रेन सीजन स्टार्ट होते ही हमको कौन सा प्रॉब्लम आता है बेटा? अगर स्टमक अपसेट हुआ है फूड पॉइजन से नहीं, ये वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर से हम पी रहे तो हमको क्या होता है कि ये स्टमक में प्रॉब्लम आके मोशंस, डायरिया and gas problems. This we will get. This dysentery बोले तो वही लूज मोशंस विथ ब्लड भी आ सकते हैं कभी कभी. टाइफाइड फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी वही है कि डिसेंट्रिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ठीक है. सो दीज आर वी विल गेट बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है. whenever you go to the hospital, they will examine about your problem, whatever it may be the problem. If you are feeling like fever or you may suffering from your loose motions or vomitings, whatever it may be the problem, whenever you go to the hospital, they will examine first what type of disease it is, by which infected agent it is happening. Okay. Then they will examine, they will decide about that one. If it is bacterial infection, they will treat with the same medications. Okay. Next, it is viral. Viral infections are also there. With that, we will get hepatitis, poliomyelitis. This poliomyelitis also called as polio. And this hepatitis is like Zandis, hepatitis A, hepatitis B. Okay. So these are mainly by viral infection only. If they do the examination through our blood report, if we will get the viral infection, these hepatitis or poliomyelitis, they will decide. Okay. So these are the viral infections. Please make a note, keep a pen and book with you. You can enter some short notes also. Then you can understand very well. Don't listen with the blank mind. Okay. Protozoal diseases, amoebiasis and giardiasis. Next, worm infestations. We may contain roundworm, threadworm, tapeworm and guinea worm. With these worms also we will get some problems in our stomach. This actually these infected agents may cause the infections at our stomach and also in our intestines also. These are mainly stomach and intestinal infections which may caused by bacteria, viral and also protozoal and also worm infestations. By these we will get the diseases are called waterborne diseases. Next classification is due to the presence of chemical agents. These are not living things. Whatever it may be the chemicals which may present in our drinking water, then we will get these diseases. First one is fluorides. With these fluorides, we may get dental and skeletal fluorosis. This fluorosis is nothing but weakening the firmness of that bone and dent. ठीक है. बोले तो उसका जो स्टिफनेस जो है वो कम हो जाती है. फ्लोरोसिस बोलते हो उसका जो अभी बोन है वो कितना स्ट्रांग रहते हैं,
मगर वो स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है विद दिस फ्लोरोसिस, ठीक है. With this florets we will get dental and skeletal fluorosis. Next are nitrates. If nitrates may contain in our water in an adequate amount, we may get this infantile methemoglobinemia. ठीक है, दिस इज द जेनेटिकल डिसऑर्डर बेटा. जेनेटिक से भी एक प्रॉब्लम आ जाती है. ये बहुत छोटे बच्चों में इन्फेंटाइल बोलता आपको पता है, बहुत छोटे जस्ट वीक्स बेबी में ये प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू द presence of infected agents and also according to the presence of chemical agents. Please understand. Next is, if we are getting the infections with our water, but what type of water we need? Actually, we should avoid to avoid these diseases. Those are safe water which does not harm the consumer even we use in a prolonged time. Okay, so this is a safe water. We can consume this water for a prolonged period also. Next is wholesome water. Wholesome water is agreeable to use. This is not that much safe water, but it can be agreeable because it is not having, it does not have unpleasant taste or unpleasant color or unpleasant appearance. Say the water which we consume, we can say that that should be tasteless, colorless, and it should be no appearance of anything. It should be clear. Okay, so this wholesome water is agreeable to use because of no unpleasant taste or color or appearance. Okay. Next are potable water. Potable water is also called as drinking water because it is having the wholesome and safe water qualities. What is the meaning of safe and wholesome water qualities? These are free from pathogenic organisms and chemical substances. In the previous slide, we discussed that if we have some infected agents, both pathogenic agents and chemical agents, if these are present in water, we may get some diseases. But in this potable water, these two are absent. In this potable water, these pathogenic organisms and chemical substances are absent. For that purpose, this is also called as drinking water, and also it is having the safe and wholesome water properties. So this potable water is very safe in drinking water. Okay, beta. So these are the drinking water. But from where we will get this water? Sources of water supply. हमको वाटर सप्लाई आना है. व्हाट आर द क्राइटेरिया वाटर सप्लाई? दिस इज अ वाटर सप्लाई. हमारे घर में नल रहता है, ये तो गली में एक नल रहता है, उससे हम पानी पीने के लिए लेकर आते हैं. दोज आर कॉल्ड सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. हमको गवर्नमेंट ये सप्लाई करते रहती है. व्हाट इज द क्राइटेरिया अबाउट दिस वाटर सप्लाई? बोल तो एम क्या है इसमें? हमको क्या मिलना है? क्वालिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एक्सेप्टेबल. अगर हमको वाटर हमको सप्लाई हो रहा है, उसमें अपना मेन क्राइटेरिया ये रहना है कि इट शुड बी क्वालिटेटिव वाटर एंड आल्सो क्वांटिटी मस्ट बी सफिशिएंट टू मीट द डिमांड. ये अगर 10 घर के लिए एक नल है तो 10 घर के लिए कितना डिमांड है उतना हमको पहुंचना है. ठीक है, सो दिस इज अ मेन नेम अबाउट द वाटर सप्लाई. अगर वाटर सप्लाई होना है, ठीक है, वाटर सप्लाई हमको हो रहा है, मगर वाटर सोर्सेस कहाँ से आता है? ठीक है, वाटर रहे तो ही हमको सप्लाई करते हैं ना बेटा. जैसा कि ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म से तो हमको इलेक्ट्रिसिटी पास होकर हमारे घर तक आती है. हमारे घर में ट्रांसफॉर्म थोड़ी रहती है, और विदाउट ट्रांसफॉर्म तो हमको घर को कैसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है. वैसे ही सोर्सेस रहना है फर्स्ट हमारे के ये सप्लाई करने के लिए. व्हाट आर दो सोर्सेस एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सोर्सेस? These are divided into 3 water sources. First one is above the surface water and groundwater. These are the 3 main classification. First one is above the surface. Above the surface में क्या है? Rain. This is the here rain. हमारा main water source जो है रेन ही है. ठीक है, हमको बारिश हुआ तो ही हमको फसल के लिए भी आता है,
कुछ भी काम करने के लिए और पीने के लिए भी, कुछ भी काम के लिए रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट सरफेस वाटर। सरफेस वाटर बोल तो क्या है, हमको रिवर्स में जब मिलते हैं ना, गंगा यमुना, ऐसा रिवर्स में, रिजर्वायर्स बोले तो ऐसा देखो डैम बनाना, ठीक है, स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स भी यहाँ पर स्टोर करके रखना, एंड पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में टैंक्स एंड लेक्स, ये सारे जो है डायरेक्ट रेन से जो आता है उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, ठीक है। जैसा देखो हम इसमें दिखाएंगे आपको कितना क्लासिफिकेशन है, ये सारे क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो ये रिवर है, ठीक है, रिवर जैसा गंगा यमुना सरस्वती ऐसे बोलते हैं ना, ये सारा रिवर। और ये देखो स्ट्रीम है, देखो रिजर्वायर, ये देखो डैम बना के रिजर्वायर में भी स्टोर करके रखते हैं, दिस इज पॉन्ड। एंड वी कैन यूज दिस आल्सो एट आवर होम, हैंड पंप्स एंड wells आर आल्सो देयर, ठीक है। So these are all about your water sources. These are surface water, बोल देखो सरफेस में ही रहते हैं वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर बोले तो वेल्स, वेल बोले तो देखो बेटा ये है जो हम हाथ से लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड वेल, ठीक है। So shallow well, deep well and springs, I will give the details in our next slides about this shallow well, deep well and springs। इसमें ये wells में भी 3 types रहेंगे, ठीक है। So these are the classification of water sources। In this classification, rain is the most important one, we have already studied about this rain। Rain is the most important source of water। This rainwater is purest, clear, bright, sparkling, soft and free from pathogenic agents, ठीक है। अगर ये रेन धरती को टच नहीं करा है, ठीक है, जस्ट डायरेक्ट आ रहा है पानी, तो दैट वन इज प्यूरेस्ट। अगर हम कौन सा तो भी बाल्टी या कुछ तो भी डेक्शा कुछ तो भी लेके अच्छा वो स्टेरलाइज करके अगर हम भरेंगे, तो उसमें हमको पानी कौन सा मिलेंगे, प्यूरेस्ट, क्लियर रहता है, उसमें कुछ भी कलर कंटामिनेशन कुछ भी नहीं रहता, ब्राइट, वो बहुत ही अच्छा ब्राइट एंड स्पार्कलिंग चमकते रहता है। बाल्टी में भर के भी डायरेक्ट वो हमारा घर के ऊपर गिर के वो पानी नहीं गिरना, डायरेक्ट बाहर रख के देखेंगे तो स्पार्कलिंग भी रहता है, सॉफ्ट भी रहते हैं एंड फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स। देखो हमको गार्ड कितना अच्छे पानी देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, बहुत ही प्योरेस्ट है, ठीक है। सेकंड वन इज इट हैज करोसिव एक्शन ऑन लेड पाइप्स। अगर हम वाटर स्टोर करके कुछ पाइप से हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें लेड पाइप्स में करोसिव एक्शन बोलते उसको थोड़ा खराब कर देते, जैसा साल्ट एक्शन रहता है ना। अगर हम सिल्वर डे भगोने में अगर भर के रखेंगे, रात में भर के रख के सुबह में उठ के देखेंगे, अगर पानी निकालेंगे थोड़ा बहुत उसमें जैसा पाउडर जैसा मिलेगा, अगर ड्राई करेंगे तो पाउडर जैसा, बोले तो दैट इज कॉल्ड करोसिव एक्शन, ठीक है। वो आयरन को भी होता है रस्ट, आयरन को रस्ट होता है ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड करोसिव एक्शन। अगर हम डेक्शे में रख के देखेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एल्यूमिनियम डेक्शे में रख के रात भर रख के सुबह में उठ के वो फेंक के थोड़ा ड्राई करके देखो, नहीं तो उसमें बबल्स भी आके आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश व्हाइटिश, दैट इज कॉल्ड करोसिव एक्शन। दिस करोसिव एक्शन में टेक्स प्लेस इन लेड पाइप्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में डस्ट सूट, सूट बोले तो क्या है, वो कोयल का जो रहता है ना, वो स्मॉल पार्टिकल्स, ब्लैक वन, दोस आर कॉल्ड सूट, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, गैसेस। व्हाट आर द गैसेस, carbon dioxide, nitrogen and ammonia, these are the harmful gases, these are impurities are picked up by rainwater from the atmosphere। एक बार atmosphere में मिल गया तो then that will carry dust, soot, organisms, microorganisms, gases, dissolved gases, इसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, these are picked up by rainwater when it will be mixed with our atmosphere, ठीक है। Next is surface water। In this we have studied about the surface rainwater. Next is surface water, second one is surface water। This surface water sources I have already shown you, reservoirs, rivers and streams, tanks, ponds and lakes। These reservoirs are artificial lakes
constructed by dams built across river. You all know, I have already explained you. In this water, clear, potable, soft and free from pathogenic organisms, but it may be contaminated by human habitations or animals. देखो बेटा यहाँ पर रिजर्वायर है, यहाँ पर हम रिजर्वायर बना के रखे हैं, मगर इस रिजर्वायर में जो पानी जो सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, सो दैट इज क्लियर, पोर्टेबल, सॉफ्ट एंड फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, these are artificial lakes, but these are constructed in a good manner and there may be stored clear water, but it may be contaminated by human habitations or animals. अगर उसमें ह्यूमन आके कुछ कपड़े धोएंगे और कुछ तो भी गंदी काम करेंगे और एनिमल्स उसमें घुस के बैठेंगे, then it may be contaminated, but really it is not contaminated water. It is clear, palatable, soft, free from pathogenic organisms. It is very clear water. See, that is why this contamination is with the animal actions only. That is why this reservoir water, if we supply this reservoir water, it should be purified, then only it should be used by human beings. Okay. So next are rivers. Rivers contains impurities produced by sewage, industrial waste, human and animal washings, etc. This is not for drinking without treatment. हमको पता है गंगा कितना गंदा कर देते हैं, क्योंकि ना कभी भी ये रिवर्स में जो है कभी कभी इंडस्ट्रियल उसमें छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन एनिमल वॉशिंग डालते हैं, सब वॉशिंग करते हैं. So this is not for drinking without treatment. इसको treat करके हम then we can use for drinking. Next, tanks are large excavations in which water is stored. Excavation is nothing but digging. तो हम खोद के जो बनाते हैं टैंक को हम नीचे खोद के जो बनाते हैं, that is called tank, in which water is stored. Because of high contamination in this silt, colloidal matter, aquatic vegetation, washing of human and cattle. ठीक है, because of high contamination, this tank water also we should not use, because these contaminations are occurred by colloidal matter, aquatic vegetation. Aquatic vegetation बोलते हो जलचर, तो जलचर रहते हैं ना, वो भी खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो उसमें रहना एक्वेटिक. बेटा ये QUATIC एक्वेटिक अलग है, ACQUATIC अलग है. दिस एक्वेटिक इज नथिंग बट जलचर है, वो एक्वेटिक इज बट नथिंग बट पानी के बारे में. ठीक है बेटा, प्लीज क्लियर दैट वर्ड. So this aquatic vegetation and also washing of human and cattle, with all this it is contaminated in a high range. So this is also not suitable for drinking water. In all these three, this reservoir water is very much nice, but it should not be contaminated by human and habitat, human and animals. Then it can be used by purifying the water. This rivers you should have to treat the water, and this tank water is not for drinking water. These are all about your surface water. Next, coming to the point of groundwater. Groundwater क्या है? It is obtained from wells or springs. So ground बोलते अंदर से आते हैं ये पानी, बहुत अंदर से हमको वेल बोलते क्या है? कुएं. आप क्या बोलते हैं? कुएं बोलते हैं. ठीक है, उसमें से हम पानी निकालना, दैट इज कॉल्ड वेल और स्प्रिंग्स. ठीक है, दिस इज obtained फ्रॉम द वेल्स और स्प्रिंग. ये हमको ऊपर सरफेस में नहीं मिलता है, हम ग्राउंड से लेते हैं. दिस वाटर इज नेचुरली फिल्टर्ड थ्रू द ग्राउंड, दैट इज व्हाई वी विल यूज दोस वाटर. With this groundwater, we have some advantages and also some disadvantages. Advantages is that free from pathogenic agents, does not require treatment and supply may be adequate. See, it is naturally filtered, है ना. ग्राउंड वाटर जो है नेचुरली फिल्टर होते हैं, जैसा सैंड रहता है, मिट्टी रहता है, उसमें नेचुरल फिल्टर होता है. So it is free from pathogenic agents and there is no requirement of treatment and supply may be adequate. We can supply how much we can supply, क्योंकि ना ग्राउंड में तो पानी बहुत भर के रहता है. Next disadvantage is it contains
हाई कंटेंट ऑफ मिनरल्स, दैट इज कैल्शियम एंड मिनरल, ये ज्यादा नहीं रहना हमको, विच मेक्स इट हार्ड, ये वाटर जो है हार्ड दिखता है। देखो ग्राउंड वाटर हम जो आरओ वाटर ऐसा पीते हैं बहुत लाइट सॉफ्ट रहते हैं, ग्राउंड वाटर जब लेके पीते हैं नीचे से, जब खेती में जाके वहां पर कुछ लेके पीते हैं थोड़ा हार्ड दिखता है। इट रिक्वायर्स लिफ्टिंग बाय पंप्स और अदर फिजिकल मीन्स, क्योंकि ये अंदर रहता है, सो इट रिक्वायर्स लिफ्टिंग बाय पंप्स, पंप्स डाल के इसको बाहर निकालना, और अदर फिजिकल मीन्स से भी इसको बाहर निकाल के पी सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। Next, see here, I will show you what are the wells and see wells in this. See, groundwater will obtain from the wells or springs. ठीक है, सरफेस वाटर के जो सोर्स है हम बताए हैं, और ग्राउंड वाटर जो है सोर्सेस है वेल्स और स्प्रिंग्स। अबाउट दिस वेल्स एंड स्प्रिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। वेल्स, main sources of water, these wells are main sources of water in a Indian villages and towns। और जब हम इंडियन विलेजेस में अगर गए तो वहां पर एक एक गांव में एक एक रहता ही है, सिटीज में नहीं रहेंगे, मगर विलेजेस एंड टाउन्स में तो एक एक गांव में एक एक नहीं 10 तक भी रहेंगे, एक एक बोले तो एक एक कॉलोनी में एक एक कंपल्सरी रहते हैं। उस जमाने में कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंपिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही देखो यहाँ पर इससे हाथ से जो है अंदर डाल के पानी निकाल के यूज करते हैं। दिस इज द वेल, सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंडियन विलेजेस एंड टाउन्स। सो दिस वेल्स once again are classified according to the method of construction। ये जो कंस्ट्रक्शन जो है, पानी नीचे है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन ये है, सो दिस construction, depending upon this construction, it is classified as dug wells or tube wells। ठीक है, dug well also called as कच्चा well, पक्का well। ठीक है, कच्चा well, पक्का well, this is the commonest type lined by bricks or stones। so this is the कच्चा well or पक्का well, this is the commonest type of type lined by bricks or stones। ये bricks और stones से बना देते हैं। If contains steps to fetch water, it is called step well। ठीक है, अगर ये वेल ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा बहुत नीचे उतर के पानी लेना है, that is called step well। See, this is called step well। if कभी कभी गांव में ऐसा भी रहता है बेटा, हम कुएं में अंदर स्टेप्स रहता है, अब पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, पुराने जमाने के पिक्चर्स में वो अंदर जाना बोलते तो स्टेप से जाके पानी लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप वेल। अगर इट इज इम्प्रूव्ड आइडियल डग वेल इज सैनिटरी वेल, बोले तो हम अपनी तरफ से अच्छी तरह से इम्प्रूव करके जब वेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैनिटरी वेल। हाउ इट इज लुकिंग लाइक, it is lining built by bricks or stones and have parapet, platform, drain and covering, all the sources it is having। ठीक है, सैनिटरी वेल अगर आप देखेंगे तो नेट में आपको अच्छी तरह से दिखेगा, बिकॉज ऑफ अगर यहाँ पर कुछ भी अगर इंतजाम नहीं है ड्रेन का, प्लेटफॉर्म का, इसको कवरिंग भी नहीं है, देखो ये कवरिंग का कुछ भी नहीं है इसमें। सो दिस इज सिंपल डग वेल और कच्चा पक्का वेल। ठीक है, जस्ट ऐसा है, मगर इसको अगर इम्प्रूव करके रहते हैं, इसको देखो यहाँ पर अच्छा कवरिंग है, अगर ड्रेनिंग सिस्टम सही है, प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से यहाँ पर बना के रखे, पैरापेट है, सो अगर इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स और स्टोन्स है, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज सैनिटरी वेल। इज सैनिटरी वेल। So by construction method, I have already told you, by the method of construction these wells are classified। कच्चा वेल पक्का वेल सेम यही है, अगर कुछ स्टेप्स नीचे रहेंगे तो स्टेप वेल है, अगर हम अच्छी तरह से ये वेल को अच्छी तरह से कवरिंग वो ये करके अच्छी तरह से बनाए तो देन इट इज कॉल्ड एज सैनिटरी वेल। नेक्स्ट,
डग वेल फर्स्ट मेथड है, उसमें ये क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट इज ट्यूब वेल. शैलो एंड डीप वेल है ये इसमें. देखो दिस इज कॉल्ड ट्यूब वेल. देखो घर के पास ट्यूब है. और हम इससे पहले जो बताए हैंड पंप का वेल. So this is also called as hand pump. पाइपिंग का सिस्टम ही बोलते हैं इसको. हम घर के पास ऐसे रखते हैं, खेती करना है तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं. So this is called tube well. इसमें भी shallow और deep भी रहता है, ठीक है. It may be deep. These tube wells are two types, that is shallow and deep well. Shallow tube well is driven well, also called as driven well, consists of an iron pipe sunk into the water bearing stratum and strainer at the bottom and hand pump at the top. This is called a driven well. Maybe it is called this one. This one. Okay. This is the tube well. They are giving the details. Shallow tube well or driven well. आयरन पाइप रहेगा इसमें. sunk into the water. ये वाटर में डाल देंगे. bearing stratum. strainer at the bottom. bottom में strainer भी रहेगा. एंड ऊपर में हैंड पंप एट द टॉप. हैंड पंप असल ऐसा मार के हम ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज अ डीप पंप. दिस इज अ शैलो पंप एंड दिस इज अ डीप पंप. सो दीज आर ट्यूब वेल्स. दीज आर कॉल्ड ट्यूब वेल्स. नेक्स्ट इज स्प्रिंग. Springs are natural outlets of groundwater held under pressure in the ground. These are also shallow, deep, mineral and thermal. These are the four types. इसमें क्या होता है ना, ये वाटर जो है अंदर से एक पाइप रहेगा बेटा. ये प्रेशर से ये भरेगा. देन वी विल यूज दिस. दिस इज अ नेचुरल आउटलेट. वाटर इट में भी था बाहर को. बाहर जो हाउस जैसा बनाते हैं, स्प्रिंग डाल के बनाते हैं, उसमें भर के रखते हैं. हेल्ड अंडर प्रेशर इन द ग्राउंड. इसका जो प्रेशर जो है अंडर ग्राउंड से हमको यहाँ पर पानी भर के हम यूज करते हैं. इसमें भी शालो स्प्रिंग्स है, डीप स्प्रिंग्स है, मिनरल स्प्रिंग्स है एंड थर्मल स्प्रिंग वेल्स है. दीज आर ऑल द wells only. Spring wells. You should have to write shallow spring well, deep spring well, mineral spring well, thermal spring wells. These are the four types of spring wells are there. These water held under pressure in the ground. Then it will be stored in upper side, upper surface. Then we will use. Spring water may vary in quality and it may come very slow. The quality is also different and also it may come very slow. Under pressure it may come out. ठीक है बेटा. This is about springs. We are getting the water from water sources nicely, है ना. देखो these are the water sources. रेन से आया है हमको. नेक्स्ट हमको रिजर्वायर से आया है. रिजर्वायर से, रिवर से, टैंक से, ग्राउंड वाटर से, ये सारे सोर्सेस है. और ये सारे सोर्सेस हमको सप्लाई है. सो है, मगर इट कैन बी पोल्यूटेड. वाटर कैन बी पोल्यूटेड. हमको उसका वाटर पोल्यूशन भी देखना है. वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट इज कंटामिनेटेड विथ, बोले तो व्हेन इट इज कंटामिनेटेड विथ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स. व्हाट आर दोस? डिसॉल्व्ड गैसेस. These are the कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इससे पहले नाइट्रोजन, ये सब हम बताए थे ना, वही डिसॉल्व्ड गैसेस है. डिसॉल्व्ड मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इससे पहले स्लाइड में आया है ये भी, ठीक है. डिसॉल्व्ड मिनरल्स. सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, तो उसमें मिक्स रहते हैं. क्ले, सैंड एंड मड. These are not dissolved, suspended. You have to understand what is the meaning of dissolve and what is the meaning of suspended. ठीक है. Maybe you may स्टडीड इन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. डिसॉल्वेबल तो मिलके रहना. आपको अगर बेस्ट एग्जांपल देना है तो साल्ट या शुगर, वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है. मगर वही पानी में अगर आप सैंड डाल के रखेंगे, जो मिट्टी डाल के रखेंगे, वो खाली कलर जस्ट चेंज होता है, मगर इट इज नॉट डिसॉल्व वन, इट इज सस्पेंडेड वन. वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होती है. अगर हम पानी निकाल देंगे तो नीचे सेडिमेंट होकर रहता है, नीचे जो जमा होता है
दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, वो पूरा नीचे जमा होती है. सो दिस इज अबाउट dissolved minerals and this is a suspended impurities, clay, sand and mud. ठीक है, suspended impurities. Next, microorganisms and organic matter. ठीक है, whatever it may be the chemical substances and microorganisms are pathogenic organisms. With these, this water can be polluted. There are many chances to pollution of water with these ingredients. ठीक है. So what are the sources? अगर हमारा water pollution हो रहा है, water pollution हो रहा है, so what is the sources from where this contamination is coming? ठीक है. Water is said to be polluted when it is contaminated with this sewage containing organic matter and pathogenic agents. See here how the water is polluting, how the water is getting contaminated with this material. See, you can see. देखो हम पानी में कितने गंदे गंदे डाल देते हैं ना, गंगा उसमें डाल देते हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल्स, बॉटल्स, हम चाय कप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, फेंक देते हैं. ये जब ये कूड़ा वाला भी कहाँ जाके फेंकते हैं, फिर वही गंगा उसमें डाल के आ जाते हैं, वही सराउंडिंग्स में डाल देते हैं, हवा है तो फिर उसमें आके मिल जाएंगे. ठीक है. सो दिस आर द वाटर सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन. सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक एजेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट लोग भी जो है पाइप से इंडस्ट्री से लेकर आके पानी में मिला देते हैं. एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स बोल तो एग्रीकल्चर में जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, खेती में अगर वो वहां पर वो अच्छा ये होना है, उसको कुछ भी कीड़े नहीं आना बोले तो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स पूरा हम यूज करते हैं, वो सारे भी अगर बारिश आ गया तो उसमें से आके फिर आके यहीं पर मिक्स हो जाते हैं पूरा गंगा में. ठीक है. नेक्स्ट फिजिकल पोल्यूटेंट्स, व्हाट आर दोस? हीट एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स. जो गर्माहट जो है वो एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो भी है, these are physical pollutants. Chemical hazards भी है. These are aquatic life used as food. Fish के लिए जब हम उसमें वो डालते हैं, ये डालते हैं, केमिकल हजार्ड जो भी है वो सब. ठीक है. नेक्स्ट बायोलॉजिकल हजार्ड्स, बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोअल, इससे पहले बताए थे. ठीक है. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन हो रहा है इस सोर्सेस से, अब फिर बचना कैसा है? हाउ टू प्रिवेंट दैट पोल्यूशन? See here, education and legislation to prevent the release of pollutants into the water sources. Education, हमको नॉलेज जाना चाहिए. आप आज पढ़ लिए हैं कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, टी ग्लास पीते हैं, सब अगर ऐसा फेंक देंगे बाहर तो इससे हमको प्रॉब्लम हो रही है, प्लास्टिक भी फेंक दे रहे हैं. तो यू हैव टू बी alert for our environment. Then what you have to do? You should have to use only steel glass. It can be reused. प्लास्टिक ग्लास जो भी प्लास्टिक आइटम जो भी यूज करते हैं बेटा, वो वन टाइम यूज है और फेंक देते हैं. ये इतने लोग फेंकते रहेंगे, ये जाएगा कहाँ? फिर अपने को ही वो पोल्यूशन आ सकती है. सो यू हैव टू बी गेट एडुकेटेड. और आप कुछ लोगों को भी एडुकेट कर सकते हैं कि ऐसा यूज नहीं करना है, इससे हमारा बहुत ग्लोबल वार्मिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. ये आपको नॉलेज रहना है और किसी को एजुकेशन भी देना है. So education is very most most important thing है. Next is legislation. Legislation is nothing but one rule. One rule should be come to prevent the release of wastewater into the water sources. Release of pollutants. देखो यहाँ पर देखे ना, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी है, इसको कहाँ छोड़ना है, इसके लिए वो लोग एक रूल बनाना है. गवर्नमेंट एक रूल बना के लेजिस्लेशन लेकर आके उन लोग को बताना है कि ये वाटर सोर्सेस में मिक्स नहीं करना है. ठीक है. वाटर सोर्सेस में so there should be a rule to prevent this pollution, contamination, to release of pollutants into water source. Next is conventional and special water treatment of purification. हमको जो कन्वेंशनल मेथड से स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट जो भी है ट्रीट करके देन वी शुड हाउ टू यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग. देखो ये गंगा जब जाएंगे
तो साइड्स में देखो यही दिखेगा, और यही गंगा वाटर को हमको पानी के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम प्यूरिफाई करना है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देके प्यूरिफाई करना है, देन ओनली यू शुड हाउ टू यूज। सो दिस इज अबाउट योर इन्विरॉन्मेंट एंड हेल्थ में ओनली अबाउट वाटर, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारे हैं, एयर, लाइटिंग, ये सारे हैं। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट ओनली वाटर. So we have completed about water.